What are the steps? First of all, like reduction method, like oxidation method, same. We have to find the elements whose oxidation numbers are changing. Means we have to choose the substance which is getting oxidized and the substance which is getting reduced. Or you can say we have to identify the oxidizing agents and the reducing agents also. Like here we are having one reaction Cr2O72 minus plus Fe2 plus forming Cr3 plus and Fe3 plus, and we have to balance this reaction by ion electron method or half equation method in acidic medium. In this methods also we have to balance the reaction in two mediums, in acidic medium and in basic medium. So we will understand, we will do the questions of both the methods one by one. So right now the question which is in front of your screen, that is in acidic medium. So first of all we have to put the oxidation numbers. Like here you can see Cr2O72 minus. So what will be the oxidation number of chromium here? Oxygen -2 and 7 atoms of oxygen we are having. So 7 twos are 14 minus 2, that is 12. And 2x, chromium ki 2 atoms hai, so the oxidation number of chromium will become 6. And on the other side it is +3 already given because it is in the ionic form. So whatever will be the charge on the ion, that will be the oxidation number. You people know about it. Then Fe, that is already in the ion form. So Fe2 plus is getting oxidized into Fe3 plus. So it's very much clear now that the oxidation number of chromium is decreasing. So that is why chromium Cr2O7 is getting reduced, and the oxidation number of iron is increasing. So it means Fe is getting oxidized. Okay. Now what we have to do, now there is slight change. Now we have to separate both these reactions, or you can say both these substances. जो oxidation हो रहा है उसे हमें अलग लिख लेना है, और जो reduce हो रहा है उसे हमें अलग लिख लेना है. Like this is oxidation half reaction. Means we have to divide the reaction into two parts. One part will be of oxidation and another will be of reduction. तो पहले oxidation वाले part की बात करते हैं. So as we have said that iron is getting oxidized, तो आयरन को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमने लिख लिया आयरन Fe2 plus into Fe3 plus. Now what we have to see, we have to see what is the difference between their charges. So we have to balance the charge on both the sides. अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड पे iron is having 2 plus charge and on right hand side it is having 3 plus charge. So 3 plus charge कब आया होगा? जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर दिया होगा, तभी तो 3 प्लस चार्ज आया ना. इलेक्ट्रॉन्स देने से ही तो पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज होते हैं. सो पॉजिटिव चार्ज हैज बीन इंक्रीज्ड हियर, इट मींस इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. एंड अदरवाइज आल्सो ऑक्सीडेशन क्या होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना. तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. सो 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है तो -1 इलेक्ट्रॉन कर दिया हमने. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस द चार्जेस ऑन बोथ द साइड्स. ठीक, हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पहचान की. फिर ऑक्सीडेशन को हमने अलग लिख देना है, रिडक्शन को अलग लिख देना है, और उनमें दोनों साइड जितने चार्जेस का डिफरेंस है वो प्लस या माइनस हमें कर देना है. ऑक्सीडाइजिंग है तो ऑब्वियसली माइनस कर देंगे उतने चार्जेस, और अगर रिडक्शन है तो उतने चार्जेस को प्लस कर देंगे. नाउ वी हैव टू बैलेंस द एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स. लाइक हियर आयरन इज ऑलरेडी बैलेंस. Here also we are having 1 atom of iron and here also we are having 1 atom. I must say iron. So both the sides we are having 1 iron. So iron is already balanced. There is no oxygen, there is no hydrogen, there is no any other element. So this half equation is balanced. Now we have to see the another half equation, that is reduction half reaction. So reduction किस में हो रहा है? Cr2O72 minus is getting reduced into Cr3 plus. सेम थिंग विच देखो क्रोमियम वाला हमने एक ऑक्सीडेशन में भी करा था. आपको मैंने बताया था कि क्रोमियम में जरूर देख लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रोमियम का Cr2O7 दिया होता है, एंड हियर वी आर हैविंग 2 एटम्स ऑफ क्रोमियम, बट दिस साइड वी आर हैविंग ओनली 1 एटम ऑफ क्रोमियम. तो 1 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है, कितने चार्जेस का डिफरेंस आ रहा है? 3 का.
बट हियर वी आर हैविंग 2 एटम्स, हमें पर एटम चार्ज चेक करना होता है ना, तो 2 एटम्स में कितना डिफरेंस आएगा? 3 का 6 का आ जाएगा ना। एक एटम में अगर 3 चार्जेस का डिफरेंस आ रहा है तो 2 एटम्स में कितना आ जाएगा? 6 का। और यहाँ पर क्या हो रहा है? चार्ज हमारा रिड्यूस हो रहा है, यानी +6 से +3 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग, इट मीन्स रिडक्शन इज गोइंग ऑन, सो वी हैव टू ऐड द इलेक्ट्रॉन्स। हमें दोनों साइड चार्जेस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा, है ना। सो ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा हो दोनों साइड, और यहाँ पर हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। प्लस कर दिया आपने, अब चार्जेस दोनों साइड बैलेंस हो गए। नाउ वी हैव टू बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो भी एटम है उसे बैलेंस कर दो। लाइक हियर यू कैन सी वी आर हैविंग 2 एटम्स ऑफ क्रोमियम, बट ऑन द अदर साइड वी आर हैविंग ओनली 1 क्रोमियम, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, बैलेंस कर दिया इसको। अब क्रोमियम बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। नाउ वी हैव टू सी ऑक्सीजन। हियर वी आर हैविंग 7 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ कोई भी नहीं है, तो we will add 7 water molecules like I have explained you in oxidation method. Same ऑक्सीजन को बैलेंस हम करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से, एंड देन बिकॉज इट इज एसिडिक मीडियम, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वी विल ऐड हाइड्रोजन आयन। कितने? 7 2 14 हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो 14 हाइड्रोजन आयन यहाँ पर हमने ऐड कर दिए। नाउ सी द चार्जेस आर बैलेंस, द एटम्स आर बैलेंस, द ऑक्सीजन इज बैलेंस एंड हाइड्रोजन इज बैलेंस। चेक कर लेते हैं चार्जेस बैलेंस हैं या नहीं है। तो यहाँ पर 2 माइनस का चार्ज है एंड 14 का प्लस चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? +14 -2, दिस इज +12 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की अगर आप बात करो तो कितना आ रहा है? +14 था यहाँ पर एंड 2 माइनस का चार्ज है ना, तो कितना हो गया? 14 -2 12 आ गया। और यहाँ पर कितना आ रहा है? क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है? 3 है ना, और 2 चार्जेस किसके? अच्छा नहीं, हाँ अभी तो ये हम सॉरी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कर रहे हैं। इतना कर लिया हमने, दोनों रिएक्शंस को हमने हाफ हाफ कर लिया था, और अब हमने दोनों को अलग अलग बैलेंस कर दिया। नाउ सेपरेटली बोथ आर बैलेंस्ड, बट हमें तो एक रिएक्शन चाहिए ना पूरा, जैसे हमें मिला था। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड बोथ दीज रिएक्शंस, हमें इनका एडिशन करना है। अभी एडिशन करने से पहले व्हाट वी हैव टू चेक कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, दोनों रिएक्शंस में इक्वल होने चाहिए, बिकॉज जब हम इन्हें ऐड करेंगे दोनों रिएक्शंस को, तब हमें इन चार्जेस को एक दूसरे से कैंसिल करना होगा। तो कैंसिल तो तभी होंगे जब ये दोनों चार्जेस इक्वल होंगे, बट यहाँ पर तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए थे हमने और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन माइनस किया था, तो इस पूरी इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो जब आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या रिएक्शन आ जाएगी? 6 Fe2 प्लस माइनस 6 इलेक्ट्रॉन 6 Fe3 प्लस। अब दोनों रिएक्शंस को हमने ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स डिडक्ट हो गए। ठीक, बचा क्या हमारे पास? Cr2O7 माइनस, नीचे से 6 Fe2 प्लस 14 हाइड्रोजन आयंस, देन 2 क्रोमियम 6 Fe3 प्लस एंड 7 H2, ये बच गया। Now the reaction: C chromium balance, iron balance, oxygen 7 balance, hydrogen 14 balance. Charges कितने हैं? माइनस का 2 and 6 2s are 12 and 14. 14 and 12 कितना हो गया आपका? 26 minus 2 कितना हो गया? 24 चार्जेस हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर देखो 3 2s are 6 and 6 3s are 18. 18 plus 6 24. So here also 24, here also 24. So it means charges also on both the sides are balanced. All the atoms are balanced. So that is why the reaction is balanced for us. Clear to everyone? Clear to everyone? मैम एक बार मल्टीप्लाई वाला ओके मैम। Clear? Okay. Now we will do one more reaction. Now this is a reaction. Now you people will also do along with me. Cr2O7 2 minus plus C2H4O forming C2H4 2O2 plus Cr3 plus. Again in acidic medium I am giving you, because अभी हमने acidic medium किया है तो पहले उसी की practice करेंगे. I'm giving you 2 minutes to solve this first, then I will start. First of all, we have to see the reaction and we have to see
which element is oxidizing and which is reducing. So for that we will put the oxidation numbers. So chromium का oxidation number same ही आएगा पिछले वाले compound की तरह. 7 2s are 14 minus 2, that is 12 divided by 2, that is 6. On the other side it is already given plus 3. Then here carbon का कितना आएगा? Plus 4 minus 2. कितना हो गया? 2, and 2 divided by 2 it will be minus 1. And on the other side it is plus 4 minus 4, that is 0. So here the number of carbon is 0. So carbon is from 0 point, from minus 1, the oxidation number of carbon is becoming 0. It means carbon का क्या हो रहा है? Oxidation हो रहा है. So it means C2H4O is oxidizing into C2H4O2. अदरवाइज भी अगर आप देखो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन ही है ये. एंड देन क्रोमियम की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन देखो अलग भी हो रहा है, ये भी एक पहचान है. एंड अदरवाइज क्रोमियम जो है +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमने सेपरेट कर लिया. हमने देखा कि एक एटम में पर एटम कितने का डिफरेंस है? 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है. बट हियर वी आर हैविंग 2 एटम्स ऑफ कार्बन, तो 2 एटम्स हैं तो इसलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करेंगे. Because process is oxidation, so we need to subtract. हमने 2 electrons subtract कर दिए. Now we have to balance carbon first of all. मैंने बोला था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर पहले जो एटम है उसको बैलेंस करेंगे. तो we will see carbon. Carbon is already balanced. Now see oxygen. Oxygen कितना है यहाँ पे? 1 and 1, 2, and here also 2. It is also balanced. Hydrogen कितना है यहाँ पर? 4. ठीक, और यहाँ पर कितना है? 4. So this is also balanced. हमने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्यों ऐड किया है? मैंने कार्बन इज बैलेंस C2H4. मैम बैलेंस करने के लिए किया है. एक मिनट. मैम ऑक्सीजन 2 है ना? इक्वेशन में ऑक्सीजन 2 है राइट साइड में, प्रोडक्ट साइड में. Yes. On the reactant side we are having only 1 oxygen. On the product side we are having 2. So to balance oxygen we will add 1 water molecule, and because here we are having water molecule तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए? 4 and 2 6. यहाँ पे 4 ही थे तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन आयंस ऐड कर दिए. Now our oxidation half reaction is balanced and we will see reduction half reaction. Reduction में सबसे पहले चार्जेस को बैलेंस करना है. Per atom the difference in between the charges is 3, but here we are having 2 atoms of chromium, so the difference will be 6. So we need to add 6 electrons on the reactant side. 6 electrons हमने ऐड कर दिए. Then we will see chromium के यहाँ पर 2 atoms हैं, but यहाँ chromium एक ही था हमारे पास, है ना? तो chromium के आगे हमने यहाँ पर 2 लगा दिया to balance the chromium. Now we will see oxygen. Oxygen 7 था हमारे पास, but this side we were not having any oxygen atoms, so 7 water molecules ऐड कर दिए. 7 2s are 14 हो गया हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने 14 हाइड्रोजन आयन ऐड कर दिए. Now both the reactions are balanced. अगर अलग अलग ये दोनों balanced. Now we have to add these reactions. We will see the charges. Here the charge is -2 and here the charge is 6. है ना? मतलब charges मतलब electrons जो हमने यहाँ पर माइनस किए वो 2 थे, यहाँ 6 थे. तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए we will multiply this reaction by 3. है ना? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. Obviously हमारे पास ये रिएक्शन आ जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करके. What? 3C2H4O plus 3H2O forming 3C2H4O2 plus 6H. अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे. 6 से 6 डिडक्ट हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, बचा क्या हमारे पास प्रोडक्ट में? ये तो एज इट इज Cr2O7 2 माइनस प्लस 3C2H4O. नाउ सी वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो. दोनों साइड है वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना? तो हम क्या करेंगे? कहाँ लिखेंगे वाटर मॉलिक्यूल को? ऑब्वियसली इन दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिकॉज ये राइट हैंड साइड पर है और ये लेफ्ट हैंड साइड पर है. सो 7 - 3 कितना आ गया हमारे पास? 4. और लिखेंगे किस साइड? जिस साइड वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा थे, यानी राइट हैंड साइड पर. आई बात समझ में? तो राइट हैंड साइड पर हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को लिख दिया. अब आ गया क्रोमियम. ये तो राइट हैंड साइड पे ही था, इसको राइट हैंड साइड पे ही लिखेंगे. C2H4O2 दिस इज आल्सो एट द राइट हैंड साइड, यहाँ पे भी इसको लिखेंगे. अब हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं. ये भी दोनों साइड है, बट ज्यादा कौन से साइड है? लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे
मगर कितने 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। सो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना 8, और क्योंकि राइट हैंड साइड पे ये ज्यादा थे तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे इनको लिख देंगे। आई बात समझ? नाउ दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। सी क्रोमियम इज बैलेंस, यस। ऑक्सीजन 7 and 3 10, और यहाँ पर कितना है 3 2 6, और वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास 4 है ना, तो कितना हो गया 10। हाइड्रोजन कितना है 4 3 12 एंड 8 कितना हो गया 20, और यहाँ पर कितना है 4 3 12 है ना, और वाटर मॉलिक्यूल्स में कितना है हमारे पास 8, तो 20। क्लियर? अब चार्जेस देख लेते हैं। चार्जेस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं -2 + 8 यानी +6, और यहाँ पर कितने हैं 3 2 6 +6, so charges are also balanced, so the reaction is balanced. Clear? Now see one more reaction. You have to balance this reaction in basic medium now. Zinc plus NO3 minus forming Zn2 plus and NH4 plus. Zinc and NO3 minus क्या बन रहा है zinc ion and ammonium ion, and we have to balance this reaction in basic medium. Same करो सबसे पहले, तो अभी तो भूल जाओ पहले आप। सबसे पहले put the oxidation numbers. Zinc elemental state में है 0 हो गया, on the other side already +2 given है। नाइट्रोजन का 3 2 6 -1 कितना हो गया 5 +5 आ जाएगा। on the other side कितना है 4 1 4, हाइड्रोजन का 1 होता है और 4 है यहाँ पर, 4 1 4, एंड इसमें से 1 हमारा क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन का जो चार्ज है दैट इज प्लस में है ना, तो पॉजिटिव चार्ज है, माइनस हो जाएगा यहाँ से ही हमारा, तो कितना आ गया 3, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया हमारे पास -3, तो नाइट्रोजन +5 से -3 स्टेट में जा रहा है यानी रिडक्शन, और जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन। तो दोनों को अलग अलग सेपरेट लिख लिया हमने, 0 to 2 ऑक्सीडेशन, +5 to +3 रिडक्शन। अब कितने इसका इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, 0 से +2, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दो ऑक्सीडेशन में। जिंक ऑलरेडी बैलेंस है, ना यहाँ ऑक्सीजन है ना यहाँ हाइड्रोजन है, सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज बैलेंस्ड। क्लियर? रिडक्शन में आ जाओ, +5 से -3 स्टेट में जा रहा है, इट मींस कितने का गैप आ रहा है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स का गैप आ रहा है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे रिडक्शन है तो ऐड हो जाएंगे। क्लियर? नाउ सी हमें बैलेंस करना है बाकी की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को, दैट इज नाइट्रोजन विच इज ऑलरेडी बैलेंस। ऑक्सीजन अगर हम देखें तो कितना है दिस साइड 3 एटम्स हैं, और दिस साइड एक भी नहीं था, तो अब बिकॉज दिस इज बेसिक मीडियम तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे OH आयन से। ठीक, तो हमने यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितना था 3, और यहाँ एक भी नहीं था, तो हमने 3 OH आयन ऐड कर दिए। अब ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया बैलेंस। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4 and 3 7 हो गया हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पर, 4 तो पहले से ही था, 3 हमारे OH आयन से आ गया तो 7 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है बताओ। अभी तो ये वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड नहीं किया ना, अभी कितना है सोचो, पहले तो NO3 था, कुछ भी नहीं था हाइड्रोजन, एक भी नहीं था ना, हाइड्रोजन था ही नहीं, तो यहाँ कितना था 4 and 3 7, तो हमने 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, 4 इसके लिए और 3 इसके लिए। अब मैं आपको बताया था कि जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं हम उतने ही दूसरी साइड पर OH आयंस लगा देंगे। ये वाले OH आयन हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए लगाए थे, और ये वाले OH आयन हमने क्यों लगाए हैं, बिकॉज यहाँ हमने वाटर मॉलिक्यूल्स लगाए हैं। ये मैंने आपको अलग अलग इसलिए लिख के दिखाए हैं कि आपको पता चल जाए 4 वाटर मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लगाए हैं, और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स इस वाले हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लगाए हैं। आप डायरेक्टली 7H2O भी लिख सकते हो यहाँ पर, ये कोई जरूरी नहीं है, 7H2O और दूसरी साइड 7OH लिख दिया। ठीक, अब अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो हमारे पास कितना आ गया, ये NO3 - 7H2O NH4+ and 10OH।
Now this reaction is balanced, nitrogen balance, oxygen हमारा 7 and 3 10 और यहाँ पे भी 10 balance, hydrogen 7 2s are 14 और here also 10 plus 4 14 balance. Now both these reactions are balanced. Individually ये दोनों balance हो चुकी हैं. अब हमें इन्हें add करना है. Add करने के लिए we will see the number of electrons which we have added and subtracted. Here we have subtracted 2 electrons but here we have added 8 electrons. So balance करने के लिए पूरी equation को किससे multiply करना पड़ेगा? 4 से, है ना? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4Zn प्लस 4Zn, यहाँ पे मैंने आई थिंक ये लिखा नहीं है, यहाँ नीचे आ जाएगा 4Zn, देन इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 4Zn2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन डिडक्ट हो गए, बच क्या गया हमारे पास? NO3 माइनस प्लस 4Zn, ठीक है, और 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, उसमें तो है नहीं वाटर मॉलिक्यूल, इसी में है सारे, तो ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए. राइट हैंड साइड पे क्या बचा है हमारे पास? 4Zn2 प्लस एन NH4 प्लस और 10 OH. जिंक बैलेंस, yes balance. Nitrogen balance, yes balance. Oxygen 3 and 7 10 10. Hydrogen 7 2s are 14, here also 14. Charges देखो, -1 चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड पर. राइट हैंड साइड पर देखो 4 2s are 8 and +1 9 पॉजिटिव चार्ज एंड 10 माइनस चार्ज. तो ओवरऑल कितना हो गया हमारे पास? माइनस का 1 चार्ज. सो दोनों साइड माइनस के चार्जेस भी बैलेंस है. सो रिएक्शन इज बैलेंस. क्लियर? वन लास्ट रिएक्शन, इसे और कर लेते हैं. क्या करना है हमें इसमें? ऑब्वियसली रिएक्शन में ही OH दे रखा है, तो उन्होंने अगर आपको नहीं भी मेंशन किया है कि एसिडिक मीडियम में करो और बेसिक मीडियम में करो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इस रिएक्शन को आप बेसिक मीडियम में ही बैलेंस करेंगे. कई बार क्या होता है, नहीं भी दिया होता, वो आपकी अकल पर छोड़ देते हैं. उन्होंने आपको रिएक्शन ही ऐसी दे दी जिसमें H+ आयंस है या OH आयंस है, तो आप अंडरस्टूड है अगर H+ आयंस है, यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, and if OH ion, you have to balance the reaction in basic medium. ठीक है? So this is a reaction CrOH whole thrice plus IO3 minus forming I minus and CrO4 2 minus, and you have to balance the reaction in basic medium. करो. Okay, see now. First of all, we will put the oxidation numbers. OH3 Cr plus. OH का होता है -1 ओवरऑल, बट अदरवाइज आप अलग अलग भी निकाल सकते हो. ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 एंड बाहर 3 है, तो क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा. आप एक्स वाले मेथड से निकाल कर देख सकते हो. एंड ऑन द अदर साइड ऑक्सीजन है हमारे पास, so 4 2s are 8 -2 6 आ गया हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर. So chromium का oxidation number is increasing. It means chromium hydroxide is oxidizing into chromium oxide. ठीक है, या chromate. Then IO3 minus. Oxidation number is 5 in iodine. 3 2s are 6 -1 5 हो जाएगा. And on the other side, it is already in the ion form. So oxidation number is -1. So +5 से -1 state में जा रहा है, मतलब reduction हो रहा है. Now we will separate both the reactions. क्रोमियम में ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 3 है, बिकॉज एक ही एटम है दोनों साइड, तो 3 का ही डिफरेंस है, बिकॉज ऑक्सीडाइज हो रहा था ये, इसलिए हमने 3 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दिए. क्रोमियम इज ऑलरेडी बैलेंस. ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 एटम्स हैं और दिस साइड वी आर हैविंग 4 एटम्स, है ना. ऑक्सीजन के यहाँ पर हमारे पास कितने एटम्स थे? CrO3 में 3 थे सिर्फ, और यहाँ पर कितने थे? CrO4 4 एटम्स थे. तो ऑक्सीजन हमारा एक कम हो गया इस साइड, तो उसे बैलेंस करने के लिए वी विल ऐड 1 OH आयन ओवर हियर. OH आयन ऐड करने के बाद हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 and 1 4, बट ऑन द अदर साइड वी आर नॉट हैविंग एनी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हमने वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए, और क्योंकि जितने वाटर मॉलिक्यूल हम लगाते हैं दूसरे साइड उतने OH आयन लगा देते हैं, तो वो हमने लगा दिया. सो ओवरऑल यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 OH आयन्स, एंड दिस इज बैलेंस नाउ. क्रोमियम इज बैलेंस, ऑक्सीजन is 3 and 5 8, and here also 8, it is balanced.
hydrogen 5, 6, 7, 8, and here also 4 2s are 8, it is balanced. Now we will see the reduction half reaction of this. IO3 minus 3H2O, I minus 3OH. ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 5 है आयोडीन का, यहाँ पर -1 है, तो डिफरेंस आ गया 6 इलेक्ट्रॉन्स का. सो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड कर दिए. ठीक, आयोडीन ऑलरेडी बैलेंस है. अब हम देखेंगे किसको, हम देखेंगे ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन है 3 और राइट हैंड साइड पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए we will add 3 OH ions. Now 3 OH ions, so हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन भी इंट्रोड्यूस हो गया 3, and here we are not having any atom of hydrogen, so we will add 3 water molecules to balance the hydrogen, and because here we are adding 3 water molecules, so on the other side we will add 3 OH ions. So overall OH ion on the right hand side will become 6. So overall ये reaction आ गई. Now we have to add both these reactions, this one and this one. Here the number of electrons are 3 and here the number of electrons are 6. So we need to multiply this whole reaction, this oxidation part by 2. है ना, चार्जेस को बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस के लिए इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो कितना आ जाएगा हमारे पास? We will get 2 CrOH whole thrice plus 10 OH. ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए अब हमारे पास? 6 and 2 CrO4 2 minus 8H2. इलेक्ट्रॉन 6 हो गए हमारे पास, यहाँ पर भी 6 थे, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया. ठीक, ओवरऑल दोनों को ऐड करेंगे तो ये एज इट इज आ गया 2 CrOH होल थ्राइस. एंड देन OH को देखो, यहाँ पर हमारे पास कितने OH आयंस हैं? 10, और इस रिएक्शन में कितने हैं? 6. तो 10 minus 6 कितना हो गया? 4. और लिखे किस साइड जाएंगे? जहां पर OH आयंस ज्यादा हैं. ज्यादा किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड पर. तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमने 4 OH आयंस लिख दिए, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? IO3 माइनस, वो लिख दिया. अब राइट हैंड साइड पे क्या है? 2 CrO4 2 माइनस, वो लिख दिया. वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें भी हैं और इसमें भी हैं. 8 में से 3 माइनस किया 5. ज्यादा किस साइड है? राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए और आयोडीन आ गया. नाउ सी क्रोमियम इज बैलेंस, यस बैलेंस. आयोडीन इज बैलेंस, यस बैलेंस. ऑक्सीजन देखो कितना है यहाँ पर? 3 2s are 6 and 4, 10 and 3 13. यहाँ पर कितने हैं? 4 2s are 8 and 5 13. हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 3 2s are 6 and 4 10. यहाँ पर कितने हैं? 5 2s are 10. तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस. चार्जेस देखो, 4 माइनस का और 1 माइनस का, यानी -5 लेफ्ट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड पे 2 2s are 4, 4 माइनस का और 1 माइनस का, -5. So charges also both the side -5. So charges are also balanced. So in this way, by using this ion electron method, we can balance the reaction.